ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ। ਆਪਣੇ ਗਣਤੰਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ? ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਦੀ ਦੇ 3 ਦਿਹਾਈ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਘਟੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਸਾਮੀ ਵੰਡ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਵਹੀਰਾਂ ਕੋਈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਣ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵੋਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਡੂ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਚੀਵ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 75 ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਢੇ ਹਾਕਮ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਤੋਂ, ਪੁਤਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਵੰਡ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀਪੰਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਜੀ। ਦੀਪੰਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ CPI ML ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਹਾਲ ਦੀਪੰਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਬਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਰਸਤਿਓਂ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੀਪੰਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰਿया जी, आई थिंक आई हैव आस्क्ड 387 क्वेश्चंस बेसिकली तो आप जहाँ से चाहें जवाब शुरू करें। मुझे लगता है कि अभी एक बड़ा सवाल तो ये है कि क्योंकि आप लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रास्ते पे कुछ सालों से आए हैं और बहुत मुखर रूप से आए हैं, तो ये डेमोक्रेसी का हाल क्या है? क्या हम डेमोक्रेटिक हैं? इस बात पे तो सवालिया चिन्ह बहुत समय से हैं। अभी जो डेमोक्रेसी को किस तरह के खतरे हैं? कैसे देश में जहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जहाँ सुपर स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट है, दुनिया बात करती है कि भाई ये 150 करोड़ लोगों का मुल्क कितने अच्छे तरीके से अपने नेता को चुनता है, सत्ता परिवर्तन होता है, कभी किसी ने बात नहीं की कि सड़कों पे टैंक आ जाएंगे। फिर भी आप जैसे लोगों को बहुत डर रहता है कि अरे कुछ डेमोक्रेसी को हो गया है यहाँ पे। नहीं, हमारे जैसे लोगों को सिर्फ नहीं, हमें लगता है कि इस देश में जो भी डेमोक्रेसी से जिनका लगाव है, जिनको डेमोक्रेसी की जरूरत है, सभी लोगों को और पूरी दुनिया को अब लगने लगा है कि हिंदुस्तान के जो भी डेमोक्रेसी, लिमिटेड डेमोक्रेसी, वो लिमिटेड डेमोक्रेसी भी बहुत जबरदस्त खतरे में है। देखिए, अगर डेमोक्रेसी को अगर आप संविधान से देखेंगे तो उसके प्रियम्बल में डेमोक्रेसी के कुछ डिस्क्रिप्टर्स थे, सॉवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो वो सारे जो डिस्क्रिप्शन है, सॉवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, वो सब एक एक करके सोशलिस्ट भी है। वो आपको दिखेगा कि भारत में वो लगातार कमजोर हो रहा है। मुझे तो लगता है कि जो अंबेडकर ने जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जा रहा था, उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में कुछ हम लोगों को आगाह किया था। तो 3 बातें अंबेडकर की थी और वो तीनों पैमाना अगर देख लिया जाए उस कसौटी पर, तो आज हमारा डेमोक्रेसी बहुत जबरदस्त क्राइसिस में। 1 नंबर उनका था कि डेमोक्रेसी में हमने इतना ही किया
ये एक इलेक्टोरल इक्वालिटी, एक सिटीजन के लिए एक वोट, सबके लिए एक वोट किया। वो तो है, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती रहेगी, तो ये जो एक महज 5 साल में एक बार वोट डालने की इक्वालिटी है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा मुझे। और ये इनइक्वालिटी बढ़ते बढ़ते अभी जो रिपोर्ट आई ऑक्सफैम की लेटेस्ट, वो कहां तक पहुंची है, तो एक तो हमें लगता है कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से हमारे पॉलिटिकल इक्वालिटी सो कॉल्ड वो लगातार इरेलीवेंट होते जा रही है। सेकेंड, अम्बेडकर ने कहा था कि जो भक्ति है वो धर्म के लिए तो ठीक है, अब अगर आपको सेलिब्रेशन चाहिए तो उसके लिए भक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर आप भक्ति को लाएंगे और भक्ति मार्ग पर पॉलिटिक्स चलेगा, तो अब किसी बड़े नेता के भगत हो जाएंगे, बड़े नेता के आप भक्त हो जाएंगे, तो आप दावत देंगे देश के अंदर डिक्टेटरशिप को। देखिए, और तीसरा उन्होंने जो कहा था कि भारत का जो सॉइल है, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक तरह से एक टॉप ड्रेसिंग ऑफ डेमोक्रेसी, एक ऊपरी ऊपर की लेयर है, ऊपर से है, नीचे से जो जमीन है वो जमीन लेकिन हमारी बहुत जमहूरी है नहीं, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। अब मुझे तो अब तीनों ही हमें लगता है कि कसौटी पर देखिए, एक बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे कि नेता हमारे हरमन प्यारे हैं। जब इंदिरा गांधी जबरदस्त जीत के आती हैं 71 के बाद, तो हरमन प्यारेता की तो कोई कमी नहीं रहती है। राजीव गांधी जब जीत के आए थे 480-85 सीटों के साथ, तो बहुत हरमन प्यारे थे। मोदी जी आज हरमन प्यारे हैं। एक डेमोक्रेसी में उनका ये मत है कि भाई जो आपने विधि विधान बनाया है, जैसा संविधान है, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਪਲ ਪਲ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਦਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਪੁਤਿਨ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, एडोगन हरमन प्यारा है, मैंने लगता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें तो एडोगन जीत जाएंगे वहां से भी। तो ये बताइए, अब ये एक खदशा नया प्रकट किया जा रहा है कि भाई ये जो डेमोक्रेसीज हैं ये डेस्पोटिज्म का एक रास्ता बन रही हैं। ये बताइए, जहां लोग चुन रहे हैं और लोग हरमन प्यारे नेता को वोटें दे रहे हैं, तो वो नेता तानाशाह कैसे बन सकता है? ये क्यों डर है कि भाई ऐसा नेता तानाशाह हो जाएगा? देखिए, लोग जो चुनते हैं, लोग किसी आधार पर चुनते हैं। जैसे चुनाव होता है, उस समय नेता की तरफ से कुछ वायदे किए जाते हैं, पार्टी की तरफ से कुछ प्रोमिसेस हैं, और चुन के आने के बाद अब आप देखेंगे कि वो सारी बातें गायब। अब वो कह देंगे कि ये सब तो चुनाव जीतने के लिए जुमला था। अभी जैसे आप देख लें कि 14 के बाद मोदी जी आए, उस समय हमारे सामने एक गोल पोस्ट रखा गया था कि 2022 आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे, 2022 में न्यू इंडिया बनेगा, 2022 में सबके लिए पक्का मकान होगा, 2022 में पक्के मकान में 24 घंटा बिजली मिलेगी, सबके लिए पीने का पानी होगा। अब आप देख लेंगे कि अभी इस समय कहीं मकान की चर्चा नहीं हो रही है, कहीं पक्का मकान सबको नहीं मिला है, बल्कि अभी जो बातें हो रही है कि मकान जिसका जो बना हुआ था उसको बुलडोजर से ढाया जा रहा है। अब गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया है 2047। अब मोदी जी कह रहे हैं कि ये अगले जो 25 साल है, ये तथाकथित जो अमृत काल है, ये कर्तव्य काल है, जहां आप सरकार से पूछो मत, मांगो मत, आप अपना काम करते जाओ। तो हमें लगता है कि ये जो आप वोट लेते हैं, ठीक है, तो जनता का वोट कंडीशनल वोट होता है कि आपने कुछ कमिट किया, आपने कुछ कहा और उस उम्मीद से लोगों ने वोट दिया। अब वोट पाने के बाद अगर आप उसको लाइसेंस बना लेंगे कि हम जो मर्जी करेंगे, तो वो तानाशाही। मैं मोदी जी की ऑब्सेशन से आपको निकालने के लिए बाकी दुनिया में ले चलता हूं, क्योंकि 2014 से नहीं है तो 1970 में हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे थे अभी, परंतु रोटी कपड़ा मकान हमें पता था, और गरीबी हटाओ तो मेरी राखी पे लिखा हुआ था जब बहन ने बांधी थी, उस समय भी 5 साल का भी मैं नहीं था। तो मुझे ये बताइए, ये प्रोजेक्ट बहुत देर से पेंडिंग है और बहुत लोगों ने काम नहीं किया है। आप दूसरी जगह भी देखिए, कल को रिसोर्सेज होंगे तो मान लीजिए सबको पक्के घर दे देंगे, कल को कोई मिनिमम बेसिक इनकम सबको दे देंगे मोदी जी। 15 लाख अगर जुमला था तो चलिए कुछ दे देंगे, वो कह रहे हैं कि किसानों को दे देंगे, या मोदी जी नहीं रहेंगे कोई और आएगा इसी तरह से, तो वो दे भी देगा। उसके बाद भी ऐसा क्यों है कि ये जो
पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट जब इलेक्ट होती हैं तो एक फैंटम डेमोक्रेसी सी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो बन जाती है। जब वो स्ट्रॉन्ग स्टेट के साथ मिलती है, सिटीजन्स की लाइफ को इस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनको कॉन्फॉर्मिस्ट बनाया जाता है, तो फिर वो तानाशाह की तरफ चली जाती हैं। तो क्या तमाम डेमोक्रेसीज इस समय ऐसी चल रही हैं? मोदी जी को यहाँ छोड़िए, आप अमेरिका में देख लीजिए ट्रंप के साथ क्या हो रहा है, दूसरे देशों में देख लीजिए, जर्मनी में अभी अभी क्या हुआ है, मतलब 20,000 लोगों का एक नेटवर्क सरकार को हथियारबंद तरीके से उल्टाने के चक्कर में था जर्मनी में, जहां तो बहुत इवॉल्व वेस्टर्न डेमोक्रेसी है। तो ये तमाम जगह पे डेमोक्रेसी के ऊपर इतना संकट क्यों आया है? दोनों बातें हैं। एक तो देखिए, ये जो डेमोक्रेसी हम देखते हैं दुनिया भर में, आमतौर पे कहा जाता है कि पूंजीवाद का ये एक तरह से नेचुरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रूल है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो या जो भी एक रिपब्लिकन मॉडल हो। तो आज दुनिया भर में कैपिटलिज्म का जो क्राइसिस जहां पहुंचा है, तो उसके साथ साथ ये डेमोक्रेसी का फॉर्म अब एक तरीके से सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी, तो कैपिटलिज्म भी अनसस्टेनेबल है और उसके साथ साथ उसका जो भी डेमोक्रेटिक फॉर्म था वो अनसस्टेनेबल होते जा रहा है। लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर भारत में जो कुछ हो रहा है, इसको जो ग्लोबल एक तरीके से डेमोक्रेसी का क्राइसिस है, वो उससे नहीं मिला के देख रहे, उसका इंडियन वर्जन समझने से नहीं चलेगा। ओके, ये उसका इंडियन वर्जन जरूर है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा है। ज्यादा क्या है कि भारत में ही एकमात्र आपको मिलेगा कि एक तरफ एक बीजेपी पार्टी दिख रही है, उसके पीछे एक संगठन है आरएसएस, जो 1925 में बना, निष्ठा से काम किया उन लोगों ने, और उसने तब से 100 करीब 100 साल, तो 100 साल से उसके दिमाग में कहीं कोई डेमोक्रेसी नहीं है। उसके दिमाग में था कि भारत में ये संविधान की कोई जरूरत नहीं थी, जो मनुस्मृति है वही भारत का असली सुनिए, संविधान उनका एक सपना था, उसके लिए जो रास्ता मिल सकता है वो करेंगे। आपका एक सपना था, डेमोक्रेसी उस तक पहुंचने का एक जरिया अब आपने चुनी, आपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चुन लिया। तो ऐसा नहीं कि आप उस मीन्स के प्रति क्यों कोई कमिटेड रहे कि मुझे डेमोक्रेसी के थ्रू ही जाना। मुझे कल को कोई सपना दिखा दे कि ऐसा एक डिक्टेटर आएगा जो हिंदुस्तान में रोटी कपड़ा मकान सबको दे दूंगा, तो मुझे लगा 100 बिस्मिल्लाह, चले आइए, ऐसे ही डिक्टेटर आ जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें लगता है कि आज के दौर में डेमोक्रेसी इसलिए चाहिए कि आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना है। ये सब लोग समझ रहे हैं। सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन हमको समाज को भी बदलना है। हमें इस समाज में, जिस समाज में जैसे आप कह रहे थे कि भाई पूरे हमारे देश में आज भी कास्ट सिस्टम है, बिल्कुल कास्ट ऑपरेशन है, महिलाओं के साथ क्या होता है हम सब देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो हमको तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है, हमें एक आधुनिक भारत बनाना है। तो इस समाज को अगर बदलना है तो सरकार जो भी रहे हमको लड़ते रहना है। तो डेमोक्रेसी हमें वो लड़ने की जगह, देखिए जिन सफों, लड़ने की जगह है, वो स्पेस है जहां हम अपनी बात कह सकते हैं। दीपांकर जी, जिन सफों से आप आते हैं वहां विजन बहुत यूनिवर्सल है। वहां जहां हमारे कामरेड भाइयों बहनों का राज था, वहां से हमने तमाम इनकलाब आते दिखे। हम लोगों ने तो जिंदगी में इनकलाब शब्द सुना तो बॉल्शेविक रेवोल्यूशन के साथ जोड़ के सुना था, परंतु अभी हाल ही में ये जो रंग बिरंगे इनकलाब हम लोगों ने पिछले समय में कुछ देखे हैं, मेरी जवानी में, वो कैसे कैसे रंग थे। वेलवेट रेवोल्यूशन आ रहा था, आपका रोज रेवोल्यूशन आ रहा था, गुलाबी रंग, गुलाब वाला, और फिर वो ट्यूलिप रेवोल्यूशन आ रहा था। क्या फूलों के नाम आपने दिया। वो ऑरेंज रेवोल्यूशन तो अभी यूक्रेन का 2004 में, मतलब आप ये जॉर्जिया वाला को और किर्गिस्तान वाले को और ये अपना यूक्रेन वाले को, बीच में चेकोस्लोवाकिया वाला को, ये जो तमाम रेवोल्यूशन जब आ रहे थे, आज से मैं 30 साल पहले आपको ले चलूं तो डेमोक्रेसी निखर के आ रही थी कि भाई अपार्थाइड खत्म हो रहा है, फौजी डिक्टेटर गिर रहे हैं, डेमोक्रेसी का बोलबाला है। अब ऐसा क्या हो गया, और मतलब ये सोशल इनइक्वालिटी तब भी थी, डिसअफेक्शन सिटीजन की तब भी थी। अब ऐसा क्या हो गया कि अचानक डेमोक्रेसी डाउन स्लाइड पे है, नीचे गिर रही है। भारत में आप देख लीजिए, 30 साल पहले और थे। आज तो हमें तो सिटीजन की तरह तो ट्रीट ही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सिटीजन जो है उसके पास अधिकार होते हैं। अभी हमारे देश में तो लग रहा है कि डेमोक्रेसी नहीं, कोई राजा आ गया है। कोई राजा है जो हमें समझता है कि हम प्रजा है, उसके सब्जेक्ट है। आप देखेंगे कि लगेगा कि अंग्रेज लौट कर आ गए हैं, और अंग्रेज जिस तरह से राज करते थे इस देश में, कुछ भी बोलो तो राउलाट एक्ट था, कुछ भी बोलो जेल में डाल देंगे। अभी यूएपीए है, कुछ भी बोलो तो जेल में डाल देंगे। अभी बीबीसी में कोई एक वीडियो आया है, कोई फिल्म आई है, मोदी सरकार नहीं चाहती कि भारत के लोग उसको देखें, उसको हटा दिया जा रहा है। वो तो हमारा बस चले तो बीबीसी का डायरेक्टर जनरल भी हम लोग बदल दें, तो हमारा बस नहीं चल रहा थोड़ा। बीबीसी को भी खरीद लेंगे, जैसे उन्होंने एनडीटीवी को लिया है। बस मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, पर आपसे केवल ये पूछना है कि वो तो पता नहीं बीबीसी को खरीदे कि नहीं। आप लोगों ने कम वक्त लड़ना कैसे है? क्या ये मान लिया है
कि भाई लिबरल डेमोक्रेसी ही वे फॉरवर्ड है और उसी की तरफ हम बढ़ेंगे। ये बात करेंगे और तमाम बातें आपको मोदी जी से अगर ऑब्सेशन है तो और बातें कुछ देश में मोदी जी से जुड़ी हुई भी कर लेंगे, और आप पंजाब की सरजमीन पे है तो पंजाब के बारे में भी, बट आफ्टर दिस ब्रेक तो बाद फिर स्वागत है जी। चर्चा कर रहे हैं देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ। 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗਣਤੰਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪੰਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ। ਦੀਪੰਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂ ਫਾਈਟ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੀਮਲ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਇਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ तमाम दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ हर पासे मतलब हर किसी देश में एक अपना मोदी है, हमारे देश में एक अपना ट्रंप है। आप किसी को किसी से भी मिला लीजिए, लोग तो भाग के जल्दी से हिटलर की एग्जांपल ले आते हैं, परंतु हमारे सामने ये है ब्राज़ील में जो हो रहा है, वहाँ एक आदमी इलेक्शन जीत रहा है और दूसरा आदमी अपने भक्तों को लेके चढ़े जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में। बिल्कुल। तो ऐसे में लिबरल डेमोक्रेसी ही आपको एकमात्र रास्ता क्यों दिखाई देता है? एकमात्र रास्ता हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन पहली बात तो आप देखिए, जो भी आप एक आधुनिक समाज की कल्पना करेंगे जहां लोगों को अपने मूलभूत अधिकार मिल जाए, तो हमें लगता है कि वो डेमोक्रेसी है। तो इसीलिए अगर हम कोई चाहते हैं कि भाई लोगों को एक तरीके से जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो, तो वो पूरा होने का नाम ही डेमोक्रेसी है। इसलिए हमें लगता है कि उसको आप लिबरल डेमोक्रेसी कहे, जो एक मिनिमम है, या उसको एक डीप डेमोक्रेसी कहे, कंप्लीट डेमोक्रेसी कहे, तो कुल मिलाकर के डेमोक्रेसी उसका एसेंशियल पॉइंट है। डेमोक्रेसी के बगैर, और भारत में अगर हम बात करें तो भारत जिस तरह का देश है, इतना बड़ा, इतना डाइवर्स, तो यहाँ एक तरीके से इंडिया का सेल्फ एक्सप्रेशन, लोगों का सेल्फ एक्सप्रेशन, उसको अगर आप करेंगे तो वो डेमोक्रेसी है। उस सेल्फ एक्सप्रेशन में लोग रिजीम के साथ हैं, उसके पीछे खड़े लोग हैं, नहीं है, लोगों का एक हिस्सा है। मैं और आप उस स्टैटिस्टिक्स में ना पढ़ें कि मोदी साहब देश में कितनी सीटें 50% या उससे ज्यादा वोटें लेके आए हैं। वो जो आर्ग्यूमेंट होता था कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में आपको 30% भी मिल जाए तो आप राज कर रहे हैं, अब वो आर्ग्यूमेंट भी आपका खत्म हो गया। तो ऐसे में डेमोक्रेसी इटसेल्फ के क्या मायने रह जाएंगे? नहीं, बिल्कुल रह जाएंगे। हमें लगता है कि क्योंकि डेमोक्रेसी के जरिए ही आप जो भी बदलाव चाहेंगे वो डेमोक्रेसी के जरिए। और हमें लगता है कि इस समय आप जो चुनाव की बात कर रहे हैं, कि चुनाव धीरे धीरे, अब जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा इलेक्शन कमीशन अगर होगा तो वो इलेक्शन कमीशन के पास क्या इंडिपेंडेंस रहेगा, सरकार के खिलाफ कुछ अगर बोलने की जरूरत पड़े तो बोलने की हिम्मत कहां से आएगी? तो हमारे देश में तो अब डेमोक्रेसी का जो पूरा सिस्टम ही है, इलेक्शन का जो सिस्टम है, वो धीरे धीरे बिल्कुल एक तरीके से एक फर्सिकल बनते जा रहा है। अब चुनाव के सारे पैसे, वो इलेक्टोरल बॉन्ड कहां से पैसे आते हैं आपको नहीं मालूम, वो बिल्कुल, और वो सारा आपको नहीं मालूम और आपको बताया नहीं जाए, इसके बारे में कानून पास कर दिया गया। बिल्कुल। तो ये पूरा आप देख लेंगे कि उसके फंडिंग से लेकर के और जो पूरे इलेक्शन के तौर तरीके हैं, उसमें तो ऐसा हो रहा है जहां नड्डा साहब इसलिए खुलेआम कह रहे हैं कि देश में एक ही पार्टी रह जाएगी, और अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम 50 साल राज करेंगे। देश में पाकिस्तान के बारे में बात करने का बहुत रिवाज है, तो आपने जितनी बात की है कि पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन कैसे लगाया जाए, और इलेक्शन कमीशन अगर सही नहीं लगेगा तो फिर इलेक्शन कैसे फ्री एंड फेयर होंगी, ये डिबेट आज की डेट में पाकिस्तान में हो रहा है, और इमरान खान और शहबाज शरीफ की हुकूमत इस डिबेट में पूरी तरह से इस समय मुसल्लह है। तो कुछ तो मुझे फहमीदा रियाज की वो कविता याद आती है कि तुम भी हम जैसे निकले तो उनके जैसे हम निकल रहे हैं। परंतु मुझे बताइए आप, क्योंकि वो चुनावी सियासत की बात कर रहे हैं, आप जब उस समय कुछ लोगों को हैरानी हुई थी और आपने डिफेंड भी किया जब आप लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल के साथ बिहार में चुनाव लड़े, उस समय नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे। तो आज की तारीख में नीतीश कुमार जी जो हैं वो आरजेडी के साथ में हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर में है, वो एनडीए में भी रही, यूपीए में भी रही, शिवसेना हमेशा एनाथीमा थी, बिल्कुल। फिर कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई। जो लोग पहले, जिनको फॉरेनर कोई लेडी पसंद नहीं थी यहाँ पे, वो लोग इकट्ठे मिलकर सरकार बना रहे थे।
और अब पता नहीं शिवसेना दोबारा किसके पास जाएगी। जिस देश में पीडीपी और भाजपा का अलायंस हो जाता हो, उस देश में ये कैसी अनटचेबिलिटी का एक थ्योरम आप बना रहे हैं? क्योंकि उस समय मैंने आपको सुना, आपने कहा कि भाई वो एंटी बीजेपी वोट डिवाइड ना हो जाए इसलिए हम इकट्ठे चल रहे हैं। तो अगर मैं उस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेच कर दूं तो आज की तारीख में सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। तो जैसे एंटी कांग्रेसिज्म होता था, ऐसे ही एंटी बीजेपी इज्म सक्सीड कर सकता है। और ये पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी क्या होती है कि बीजेपी से नहीं मिलना, बाकी हम सब मिल सकते हैं। तो वो इसलिए देखिए एक ऐसा दौर है, मुझे लगता है कि अनप्रेसिडेंटेड है भारत के पॉलिटिक्स में, ऐसा दौर कभी नहीं आया था। अभी ये जो मोदी जी के करीब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, 9 साल हो रहे हैं, और अगर 24 में लौट करके आएंगे तो इसके बाद जो भी डेमोक्रेसी अभी थोड़ा बहुत है, हम लोग बैठ करके बात कर रहे हैं, ये बात करने का देश में और माहौल नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी इसको रोकना बेहद जरूरी है कि इस समय अगर हम नहीं रोक पाते, नहीं रोकने की कोशिश करते, तो कल इट विल बी टू लेट। आपके पास बचाने के लिए कुछ रहेगा नहीं। तो इसीलिए हमें लगता है कि इस समय अब आइडियोलॉजी एंटी बीजेपीइज्म हो जाएगी। एंटी बीजेपीइज्म नहीं है, बीजेपी एक फैशिस्ट प्रोजेक्ट लेकर के, एंटी फैशिज्म, फांसीवाद के खिलाफ बीजेपी उसके एक व्हीकल है। भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ अकेले नहीं है आरएसएस, ये संघ ब्रिगेड जो है उसको रोकना जरूरी है, उस पर लगाम कसना बहुत जरूरी है। और हमें लगता है कि ये जो आपने उदाहरण दिया, तो अलग अलग दौर है। एक दौर था जब एनडीए ने कहा था, अब बीजेपी अलग थलग पार्टी थी, बिल्कुल उसको चाहिए था एलाइज। उस समय उसने कहा कि राम मंदिर, 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारे मुद्दे अभी नहीं है, उसको हम भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। तो बाद में आज जो स्थिति है उसमें एनडीए के जितने घटक दल थे उनको लगने लगा कि भाई बीजेपी वाले तो हमें खा जाएंगे। मैं इस पे जैसे अकाली दल आपके, जैसे आपने नीतीश कुमार जी का एग्जांपल दिया, जैसे आपने शिवसेना के बारे में कहा, कुछ घटक दल तो लगता है कि उनके जितने पुराने सबसे ओल्डेस्ट एलाइज वो सब छोड़ के अलग हो रहे हैं। और ये बिल्कुल इसलिए है कि बीजेपी के साथ आज तो मेरे ख्याल से इस दौर मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा, मैं केवल इसको रेखांकित करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो डेमोक्रेसी को स्टडी करते हैं दुनिया में, ये मेरे पास जॉन कीन की किताब पढ़ी है, टू किल अ डेमोक्रेसी, जो कहते हैं कि फासिस्ट की एग्जांपल देनी थोड़ा डिफरेंट है। ये जो आज के जो डेमोक्रेसी से निकले हुए डेस्पॉट्स हैं, ये बिल्कुल एकदम मॉडर्न फिनोमेना है जहाँ पे लोगों के साथ मिल के ये चलेंगे। दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर अलाइव टू हाउ पीपल आर थिंकिंग। और फिर ये बहुत पॉलिसी मेकर्स और थिंक टैंक्स के साथ मिल करके और बिग डाटा हार्वेस्टिंग कर करके वो किस तरह से वो लोगों के साथ उनको कन्फर्म करते हैं, वो एक अलग बात है। मैं वापस उस पर आना चाहता हूं जो आपने घटक दलों की बात की। मुझे ये बताइए, अमेरिका में डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, बहुत से देशों में कंजर्वेटिव्स हैं एक तरफ हैं, दूसरी तरफ लेबर है, कहीं सोशल डेमोक्रेट्स अपना एक तीसरा मुकाम रखते हैं। तो हमारे देश में भी इसी तरह से एक लेफ्ट ऑफ सेंटर या फिर बाद में थोड़ी सेंट्रिस्ट कांग्रेस रही और राइट ऑफ सेंटर कभी जनसंघ या कभी भाजपा रही। तो बीजेपी ने पहले भी तो राज किया है, वाजपेयी जी ने भी तो राज किया है। व्हाई इज मोदी इरा सो डिफरेंट देन वाजपेयी इरा देन द अर्लियर बीजेपी? इसमें क्या अलग हो गया? वही लोग, वही मुद्दे, वही राम मंदिर, वही सब उनके निशाने पे बकायदा था। और आपने कहा भाई 100 साल से वो काम कर रहे हैं, अपने निशाने के प्रति ईमानदारी से, निष्ठा से उसको एक एक करके टिक कर रहे हैं। व्हाट इज सो डिफरेंट नाउ? डिफरेंट ये हो गया है कि उस समय उनके पास इतना पावर नहीं था। जिस समय वाजपेयी जी के साथ वो आए थे, उस समय उनको अलायंस की जरूरत थी। उस समय उनको कहना पड़ा था कि भाई ये सारे मुद्दे अभी फिलहाल हमारे लिए। अच्छा, तो 303 वाजपेयी जी के पास होती तो भव्य मंदिर भगवान राम को बहुत पहले मिल गया होता। वो तो हाइपोथेटिकल सवाल होगा, लेकिन अब अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये राज सिर्फ अगर मान लीजिए एक कोई पार्टी चुन करके आ गई है, 5 साल के लिए काम कर रही है, सरकार में है, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके साथ साथ जो एक तरीके से जो आरएसएस का पूरा ब्रिगेड है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं कि यहाँ तक कि ट्विटर पर भी चले जाएंगे, वहां भी आईटी सेल दिखेगा, सड़क पर भी मॉब लिंचिंग का ब्रिगेड दिखेगा, बुलडोजर के साथ लोग दिखेंगे और एब्सोल्यूट चारों तरफ मोदी जी का जलवा दिख रहा है। बात ये एब्सोल्यूट इंप्यूनिटी के साथ। तो अभी हम जो कुछ लोग इमरजेंसी का हवाला देते हैं, इमरजेंसी और आज के इमरजेंसी में बड़ा फर्क है। वो जो इमरजेंसी था वो उसका एक लिमिटेड एडिशन था, ये एक अनलिमिटेड एडिशन है। और जिसमें स्टेट तो है ही, लेकिन स्टेट के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल
प्राइवेट वायलेंस, स्टेट के पास एक तरह से मोनोपोली होती थी कि वायलेंस एक्सरसाइज करने का वो स्टेट ही करता था। बिल्कुल, बंदूक सिर्फ स्टेट के पास होगी। अब हो गया कि स्टेट तो है ही, लेकिन इसमें जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसमें ज्वाइंट वेंचर है, इसमें कोई भी आरएसएस, कोई बजरंग दल वाले आ जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद वाले आ जाएंगे, हिंदू युवा वाहिनी कहीं आ जाएगी, कहीं कोई कुछ भी नाम लेकर के आ जाएंगे, जेनोसाइड का कॉल देंगे, कोई नरसिम्हानंद कुछ बोलेंगे। तो ये जो पूरा माहौल बन गया है देश में, तो ये टेरर, ये जो वायलेंस है, ये जो नफरत है, इसका राज चल रहा है, जिसका चुनाव से मतलब नहीं है। चुनाव तो आपने कुछ कमिट किया, एक सरकार चुन करके आई, लेकिन उसके साथ साथ ये जो पूरे बाय वन एंड गेट वन फ्री, तो फ्री में जो आपको मिला है, ये जो पूरा ब्रिगेड, ज्यादा चिंता नहीं करिए, बेहतर इमेज कंसल्टेंट उनको मिल जाएंगे तो इसका भी कुछ इलाज कर लेंगे। मैं आपको मैं बहुत ही सुहृद एंकर हूं, तो आपको ये नहीं पूछूंगा कि ये देश में लोगों की आज़ादियों के लड़ने के लिए, सिविल लिबर्टीज़ के लिए लड़ने के लिए और ऐसे तानाशाह से बचाने के लिए जो लड़ाई को अग्रणी रूप में चलाने का जिम्मा फिर आप कांग्रेस जैसी पार्टियों को देते हैं कि भाई सारे नॉन बीजेपी इकट्ठे हो जाओ और आप उसके साथ मिल लेंगे। ये सवाल मैं स्किप कर देता हूँ, परंतु एक मुझे आपसे पूछना है कि ऐसे में आप लेफ्ट को कहां देखते हैं? आज की डेट में लेफ्ट खड़ा कहां पर है, उसका विजन क्या है, वो उसके लिए लड़ कितना रहा है, उसकी कमिटमेंट कहां दिखाई दे रही है? और मैं केवल आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लार्जर मेन स्ट्रीम लेफ्ट की बात कर रहा हूं, जिनके पास बेहतर नंबर्स थे। आज की डेट में तो वो भी बहुत एम्बैरेसिंग है, परंतु फिर भी जैसा कैसा भी आज लेफ्ट है। नहीं, अभी हमें लगता है कि देखिए लेफ्ट की जरूरत तो बढ़ रही है, क्योंकि ये जो आज जो जिसको हम फासीवाद कह रहे हैं, मेरे हिसाब से इसके पीछे 2-3 चीजें हैं। एक, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारे देश में 30 साल से चल रही थी, वो एक जबरदस्त इस समय जिस रफ्तार से वो चीजें लागू की जा रही हैं, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन हर जगह, तो हमें इन आर्थिक नीतियों से देश में गरीबी, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन नीतियों को बदलना है। कथा कलम के लिए माफी, जिन लोगों ने लड़ना है, क्या वहां पे ये सोच है? बिल्कुल, अदर देन द लेफ्ट। बिल्कुल वही कह रहे हैं कि अब ये सवाल है, तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज के खिलाफ लड़ाई है, ये आरएसएस के खिलाफ लड़ाई है। तो जाहिर सी बात है कि हम जिन अपोजिशन पार्टीज की बात कर रहे हैं, तो उसमें सब लोग बिल्कुल एक पोजीशन पर खड़े नहीं हैं, ठीक है। जो हम जिस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ लड़ करके अल्टरनेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करेंगे, मुमकिन है कि वो कांग्रेस वाले ऐसा नहीं करेंगे, ये बहुत सारे पार्टी नहीं करेगी। हम जिस तरह से आरएसएस के खिलाफ या वो पूरा जो उनका मनुस्मृति वाला ब्राह्मणवादी जो पूरी सोच है, उसके खिलाफ लड़ेंगे, वो एक दिन न्यूक्लियर डील करने चले जाएंगे, आप बाहर आ जाएंगे बस। अब इसलिए हमें लगता है कि ये तो जाहिर सी बात है, जब आप कोई यूनाइटेड फ्रंट की बात करेंगे तो उसमें एक मिनिमम पॉइंट ही दिखेगा। तो वो मिनिमम पॉइंट फिलहाल यही हो सकता है कि भारत में जो संविधान था, जो भी एक संविधान है और इसीलिए एक इंडिया है, तो उस संविधान के पक्ष में खड़े रहने के लिए हमें लगता है कि इतना ही फिलहाल है। बाकी बातें अलग अलग होंगी, इकोनॉमिक पॉलिसी के मामले में, सोशल मामले में। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। अब जैसा कैसा भी संविधान है उसके लिए आपने खड़े रहना है, और यूनाइटेड फ्रंट आपके मुंह से निकला, अल्लाह ना करे ये नाम हो, इस नाम ने तो पहले ही बहुत दिल तोड़ा है। मैं ब्रेक के बाद ये पूछना चाहता हूं कि जहां राज किया लेफ्ट ने और दशकों राज किया उस वेस्ट बंगाल में जाके, वहां आज लेफ्ट कहां पर है? आपसे कोई उम्मीद करे तो क्यों करे? और फिर एक बड़ा सवाल इस देश में जो या उभरना चाहिए, और कहीं कहीं जहां उभर रहा है तो बहुत अग्रणी रूप से, कि फेडरलिज्म के मामले में कहां खड़े हैं दोनों ये घटक, एक साइड पे भाजपा वाला और एक साइड पे आप नॉन भाजपा वाला, अब घटक का नाम तो यही दिया जा सकता है। आप सीपीआई एमएल लिबरेशन ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ एक गल मैं लैफ्ट बारे कह दियाँ, ये सीपीआई एमएल लिबरेशन बारे भी उन्नी ही सच है जिन्नी लार्जर लैफ्ट बारे सच है कि उन्हों का प्रभाव इस देश की सियासत उत्ते अपनी गिनती तो, अपने नंबरस तो बहुत ज़्यादा है। ये वर्तारा ते दशका तो है। सो दिमाग भट्टाचार्य जी, मैं एक सवाल जानता जानता छड़ गया सीगा कि वेस्ट बंगाल के विच जिथे लैफ्ट का इन्ना प्रभाव रहा, वहाँ पे जब ममता बनर्जी एक बार आ जाती हैं तो उसके बाद आप देखिए अगर वहाँ पे बाइपोलर लड़ाई हो जाती है तो वो तो ममता और भाजपा के बीच में ही दिखाई देती है। इतने लंबे दशकों तक लोग कैसे माने? मतलब लोग तो सोवियत यूनियन की तरफ देखते हैं, तो पंजाबी में हमारे एक मुहावरा होता है कि बहुत अच्छा हुआ चरखा टूट गया और मेरी जान छूटी, है ना, तो भला होया मेरा चरखा टूटा।
तो सोवियत यूनियन के बारे में लोगों ने यही सोचा कि अच्छा ही हुआ, जिस तरह का वो डेस्पोटिज्म था और जो वहाँ पे इनकलाब के नाम पे और सोशलिज्म के नाम पे हो रहा था। मैं आता हूँ उन बातों की तरफ जो आपकी पुरानी कोलीग कविता कृष्णन ने की हैं पार्टी में आपसे विदा लेते समय, उनकी तरफ आते हैं। परंतु क्यों कोई विश्वास करे कि लेफ्ट कुछ अच्छा करेगा? 30 साल मौका दिया, ऐसा अच्छा कुछ नहीं कर पाए कि लोग दोबारा मुंह पी लगाएं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है मेरे ख्याल से। अभी 34 साल अगर राज कर रहे थे तो जरूर बीच में कई चुनाव जीत करके भी आए, तो जरूर उसमें कुछ तो काम शुरू में हुआ। देखिए, हमें लगता है कि वहाँ आखिरी दौर में, खासकर जो आखिरी 10-15 साल है, तो जिसमें इन्होंने बड़ा पॉलिसी डिविएशन हुआ, जो जिस वजह से वहाँ लेफ्ट का रूल था, कुछ लैंड रिफॉर्म, ऑपरेशन बरगा, पंचायती राज, तो बाद में जब किसानों से सिंगूर में जमीन ले ली गई बिना किसान से पूछे, जबरन उनसे जमीन छीनी गई, नंदीग्राम में तो जमीन एक्वायर नहीं हो पाई, लेकिन उससे पहले ही सभी संघर्ष हुआ। मतलब मुझे कोई ऐसी मतलब अनक्वालिफाइड मुआफी आती दिखाई नहीं दी है, बिल्कुल पेनेंस नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि एक तो जिस वजह से लोग जो सीपीएम को वोट करने वाले लोग थे, धीरे धीरे सीपीएम से अलग होने लगे। सेकंड, इन्होंने गलती जो की कि वहां से हटने के बाद सत्ता से उनको शायद ये अंदाजा नहीं था कि 2014 के बाद देश में जो बदलाव आया कि भारतीय जनता पार्टी इमर्ज कर जाएगी, और जब बीजेपी इमर्ज कर रही थी तो इसके बारे में उनको इतना इंडिफरेंस था कि ठीक है, अगर ममता बनर्जी जाए, बीजेपी आ जाए तो आ जाए। तो हमें लगता है कि ये बंगाल के लोगों ने बिल्कुल इसको पसंद नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा ने एक ट्रैक्शन गेन की है देश में, भले ही राष्ट्रीय मीडिया ने बहुत उसको इग्नोर करने की कोशिश की है, परंतु राहुल गांधी की बातों के इर्द गिर्द बात होनी शुरू हुई है। भले उनका क्रिटिसिज्म हो रहा हो, परंतु बात होनी शुरू हुई है। 2 सवाल हैं इसमें। कौन काम कर रहा है आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे कि हमें कांग्रेस को या उसके नए नेतृत्व को, वो खड़गे हों या राहुल गांधी हों या जो नई पीढ़ी, कांग्रेस में कुछ अच्छी पीढ़ी आ रही है, उन लोगों के साथ या बाकी की जो हम ख्याल पार्टियां हैं जो नॉन बीजेपी एक फ्रंट बनाना चाह रही हैं, वहां ये बात की जाए कि सियासत उसको कहते हैं जहां आपको पीछे जाके 1991 वाली पॉलिसीज को फिर से सोचना होगा। वो आइडियोलॉजिकल वर्क कौन कर रहा है? क्या लेफ्ट वहां आपको एग्रेसिवली काम करता दिखाई देता है? नहीं, अब तो कभी कभी समय समय पर ये लोग बोल रहे हैं, जैसे मतलब आज जिस तरह से रोजगार का सवाल देश में आया है, आज उसके साथ साथ मेरे ख्याल से एजुकेशन का भी सवाल, हेल्थ का भी सवाल आ रहा है। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमें लगता है कि जिसको अगर ठीक से पकड़ा जाए, एड्रेस किया जाए, और जाहिर सी बात है कि वो पुरानी नीतियों पर चल करके नहीं हो सकता। अब कथा कलामी के लिए माफी, अगर ठीक से पकड़ा जाएगा तो आप राहुल गांधी के साथ मिलने की बात नहीं करेंगे। जैसे ही राहुल गांधी रोजगार की बात करेगा, आप कहेंगे कि कमबख्त आप ही की पार्टी ने मरवाया है, क्या आप उसको रीथिंक करेंगे हर बात पे? जैसे ही वो कहेंगे कि ये सुधा भारद्वाज को, वरवरा राव को जेलों में डाल रहे हैं, तो हम ये सोचेंगे कि आप झट से कहेंगे कि चिदम्बरम जी आप ही ने ये यूएपीए में ये धाराएं डाली हैं कि उनको जमानत ना मिल सके। ये लड़ाइयां नहीं दिख रही हैं। मेरे ख्याल से आज ये बात नहीं हो रही है। ओके, कोई लौट करके पीछे जा करके हम अतीत की बहस आज नहीं कर रहे हैं। आज नहीं, मैं अतीत की बहस नहीं कर रहा हूं। आज हम क्या रीथिंक करेंगे कि रास्ता बदलें? नहीं, बिल्कुल रास्ता बदलना चाहिए, और उसमें रास्ता बदलने के लिए जो उस रास्ते पर चले हैं उन्हीं को तो रास्ता बदलने का मतलब मनरेगा से आगे, ये नहीं कि कोई स्कीम ले आएंगे और लोगों को इतना पैसा दे देंगे या मिनिमम बेसिक इनकम दे देंगे। आगे तो बल्कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून चल रहा है देश में जी। एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून तो है नहीं। हम तो चाहते थे कि भाई गांव में जैसे है, शहर में भी अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए भी गारंटी एक्ट हो, और उसका कोई मतलब निकले। मतलब उसका आप 250 रुपए देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है आज के हिसाब से। तो साल भर काम मिले, और साथ साथ अब हमारे देश में अभी इस समय अगर रोजगार चाहिए तो हेल्थ, एजुकेशन, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां अगर आप लोगों की गारंटी करेंगे कि लोगों को अपना मिले, तो आपको सबसे ज्यादा शायद रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट वही मिलेगा इन सेक्टर्स में, लोगों को पब्लिक सर्विस मुहैया कराने में। तो हमें लगता है कि ये सारे मुद्दे जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लिबर्टी का सवाल, डेमोक्रेसी का सवाल, तो ये बात अपनी जगह पर है कि कांग्रेस के जमाने जैसे यूएपीए चिदम्बरम के समय में हुआ, सब ठीक है अपनी बात, लेकिन आज शायद कांग्रेस को सोचना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो हमसे गलती हुई है, तो करेंगे लोग। अच्छा, बिल्कुल संक्षेप में राहुल गांधी की यात्रा को आप कैसे इवेल्युएट करते हैं? अब तो कश्मीर तक पहुंच गए।
यात्रा तो मेरे ख्याल से एक अच्छा इवेंट के तौर पे अगर देखा जाए तो ठीक है। जो कुछ मुद्दा बन रहा है, लोगों की एक भागीदारी उसमें दिख रही है। ऐसी फ्री व्हीलिंग सी थॉट में आप कथा कलमी के लिए माफी, मुझे वो याद आ रहा है वाकलेव हवेल का ऐसे पावर ऑफ द पावरलेस। तो आपको लगता है कि ऐसी यात्रा के बाद कोई ऐसी वेव ऑफ डिसीडेंट्स उठेगी? उस ऐसे में हवेल लिखते हैं कि हम तो कभी डिसीडेंट बनना ही नहीं चाहते थे, इन हालातों ने और इन लोगों ने हमें डिसीडेंट, आम नागरिक को डिसीडेंट बना दिया। आपको लगता है कोई ऐसी वेव डिसीडेंस की देश देखेगा? ऐसे में मतलब बहुत सी यात्राएं, जगह जगह यात्राएं, जगह जगह बातचीत, लोग खुल के सवाल पूछें रोजगार के बारे में और वो तमाम सवाल जो आप कह रहे हैं, ये तो हो रहा है। आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि ऐसा होगा? नहीं, ये इस यात्रा के बाद नहीं, बल्कि ये यात्रा भी हमें लगता है कि उससे इंस्पायर्ड है। आप जैसे देखेंगे कि जो नागरिकता कानून पर जो देश में आंदोलन शुरू हुआ, ये शाहीन बाग वाला मॉडल है, ये पहले तो कभी देश ने नहीं देखा था। किसान आंदोलन, तो शायद कांग्रेस पार्टी को भी ये लगा होगा कि अब जो कुछ भी करना है तो एक स्केल पे जाके करना है और जिसमें एक लोगों की भागीदारी दिखनी चाहिए। और शायद ये इसलिए यात्रा का आइडिया भी मुझे लगता है कि चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो किसानों का मोर्चा हो, इससे कहीं आइडिया निकला होगा कि हमें कुछ बड़े पैमाने पर जनता के बीच में जाना चाहिए और उनको साथ लेके चलना चाहिए। कुछ हमें लगता है ये दौर नया है। नए दौर में फिर से एक तरीके से आजादी की लड़ाई जैसी लड़ाई है, ये उससे कम नहीं है। लड़ तो वो भी उसी एग्रेशन से रहे हैं कि आजादी की दूसरी लड़ाई है। मोदी जी भी तभी कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, सब वही कर रहे हैं। परंतु मुझे एक बात बताइए, जो लोग प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो एक बात देख रहे हैं कि इस तरह का प्रेसिडेंशियल सा सिस्टम हो गया है, एक सिंगल लीडर हो गया है। लगता है कि हर गली में, हर म्यूनिसिपल कमेटी की इलेक्शन में और हर असेंबली की इलेक्शन में, पार्लियामेंट की हर 545 में से हर सीट पर उन बेचारों को मोदी जी से ही लड़ना पड़ता है। मोदी जी तमाम जगह पे कैंडिडेट है। तो उनका कहना है कि इसका फिर तोड़ ये है कि आप फेडरलिज्म की बात बड़े रूप में करें, क्योंकि उससे स्टेट्स भी, और मुझे तो लगता है कि बहुत सारे जो भाजपा के चीफ मिनिस्टर होंगे वो भी तो चाहते होंगे, वो बहुत कुछ कह नहीं सकते हैं, परंतु उन राज्यों के अधिकारों पे जिस तरह का छापा मारा गया है, अब हर गली मोहल्ले का थानेदार अमित शाह जी खुद लग गए हैं। जब एनआईए का ही कानून आ गया, आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नीचे कुछ भी कर सकते हैं। आप तो म्यूनिसिपल कमेटी में कचरा कहां से किसने उठाना वो भी आप तय कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या फेडरलिज्म वो की मुद्दा नहीं है जिसके इर्द गिर्द तमाम देश की पार्टियां इकट्ठी हो सकती हैं और पॉसिबली भाजपा में भी कुछ लोग चाहेंगे कि आप ऐसा करें? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी बात मुझे कोई करते, मतलब कम से कम राहुल गांधी इतनी 3800 किलोमीटर की यात्रा के दौरान उन्होंने फेडरलिज्म को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। कोई सवाल पूछ लेगा तो बोलेंगे हाँ होना चाहिए। ये वैसे ही है जैसे कि गरीबी नहीं होनी चाहिए। परंतु बात क्या फेडरलिज्म पे क्यों नहीं हो रही है? ये पता नहीं, लेकिन जैसे हम लोग ने तो जिस समय कश्मीर के साथ हुआ, हमने उसी समय कहा कि इसको सिर्फ कश्मीर के रूप में देखना ठीक नहीं होगा। दरअसल एक इस देश के लिए एक वार्निंग था कि कल ये सारे जो राज्य दिख रहे हैं वो सब एक तरीके से सेंटर की कॉलोनी बन जाएगी। और अब जिस तरह से गवर्नर का इस्तेमाल हो रहा है, अभी आपने तमिलनाडु में देखा गवर्नर क्या कर रहे हैं। तो ये रवि साहब अपना संविधान लिख रहे हैं। तो फेडरलिज्म तो निश्चित तौर पर, बल्कि हमें लगता है कि भारत के संविधान में ये जो साइलेंस है, खुल करके नहीं कहा गया था कि ये सुनना चाह रहा था कि मतलब किसी को ये कहना चाहिए कि इस संविधान को भी फिर से देखने की जरूरत है। संविधान और ये संविधान फेडरलिज्म के लिए काम नहीं कर रहा है। कि वो जो 3 डिस्क्रिप्टर है, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, जी, उसमें फेडरल भी सोशलिस्ट। अच्छा, आप एक और शब्द जोड़ना चाह रहे हैं? बिल्कुल, एक लड़ाई मुबारक हो, वो कुछ शब्द निकालना चाह रहे हैं और आप जोड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फेडरल भारत जो बिना फेडरलिज्म, इतना बड़ा देश और इतने डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी नहीं, इस बात पे अगर पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट होता तो देश तो इसको सुनना चाह रहा है। अब कोई मुझे कहेगा कि भाई दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात हुई तो आपने ये क्यों नहीं पूछा? जब कविता कृष्णन ये बात करती हैं, एक तो मैं इतना कह दूं कि मुझे नहीं लगता कि कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई इससे बेहतर कोई विदा हुए होंगे, एक दूसरे से लोग अलग हुए होंगे। इट्स द बेस्ट हैंडल्ड पार्टिंग जो पब्लिकली जिस तरह से हुआ। अंदर खाते क्या हुआ जितना पता चलता वो इतना है, पब्लिकली है वही अंदर खाते मुबारक। अब मुझे ये बताइए कि वो कहती हैं कि पार्टियां अंदर तो सोचती हैं, जिन सो कॉल्ड सोशलिस्ट रिजीम्स में जिस तरह से नागरिक के हकों पे छापे मारे जाते हैं और उनके ऊपर जो जुल्म किए जाते हैं,
उसके प्रति हम उतने सजगता से जनता में बात नहीं करते हैं। क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि सारी बात नहीं, ये खुल बात के पहली होगी बात होगी? नहीं, ये आरोप सही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वो चाहे जो रूस में जो सोशलिस्ट निजाम जो भी था उस समय जो कुछ हुआ, आज चीन में जो कुछ हो रहा है, इस पर हम खुल करके बात हाँ, करते नहीं, अशराफिया में बात होती है, सेमिनार में होगी। हैं, पब्लिकली हम आर्टिकुलेट करते हैं, बोलते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। फर्क देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि यूक्रेन वॉर के बाद कॉमरेड कविता को कुछ लगने लगा कि आज का जो रूस है शायद वो ग्लोबल फैशिज्म का हेडक्वार्टर है, पुतिन साहब आज का हिटलर है। और जैसे उस समय जर्मनी के खिलाफ रूस और अमेरिका और बाकी पूरे वर्ल्ड का एक अलायंस बना था, तो आज उस तरह से अमेरिका के साथ मोर्चा बनाना चाहिए। हमें लगता है कि ये जो बात है कि अमेरिका जो पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट के नाम पर, तो हम ऐसा वन साइडेड नहीं हो सकते हैं कि यूक्रेन वार को हम देखेंगे और बाकी सारा उस समय पैलेस्टाइन को भूल जाएंगे, बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। तो इस जगह पर फर्क था और उस फर्क को लेकर के उनको लगा कि भाई पार्टी के में रह करके शायद ये बात हम नहीं कर सकते, तो वो अपना रास्ता उन्होंने चुना। हमने कहा कि चलो अच्छी बात है। पंजाब में, मैं आखिरी सवाल है ये मेरा, पंजाब में लेफ्ट हैज अ लॉट टू आंसर, क्योंकि एक रीजनल पॉलिटिकल एस्पिरेशन की मूवमेंट यहाँ बड़े जोर शोर से लड़ी गई और उसको कैसे एक आतंकवादी मूवमेंट, अब वहाँ उधर भी गलतियां हुई होंगी, इधर भी गलतियां हुई होंगी, वो भी एक आतंकवादी मूवमेंट बना के पेश की गई। और पंजाब का जो लेफ्ट था वो किस तरफ जाके खड़ा हुआ, लोगों को बहुत क्लैरिटी से है कि उस समय स्टेट के साथ खड़ा हो गया। मैं आपकी पार्टी की बात इसलिए नहीं कर रहा कि आपकी पार्टी की इस पे लाइन बिल्कुल ही बहुत ही अलग है और कहीं वाइडली एक्सेप्टेबल है, इवन पंथिक सर्कल्स में भी पार्टी डिफरेंटली एक्ट करती है। अब आपको लगता है किसान आंदोलन के बाद जिस तरह की भूमिका पंजाब ने निभाई है, आपको कुछ अलग से एक आशा है कि एक मरकज ये भी बन सकता है उन लड़ाइयों का? किसान मोर्चा जो 3 एग्रीकल्चर बिल के अगेंस्ट लगा था, उसने सवाल कॉर्पोरेटाइजेशन पे लगाए थे। कल को रोबोटिक्स ने आना है, एआई ने आना है। आप तो एआई चैटबॉट यूज करते हैं, अभी लोगों को पता नहीं है कि एआई चैटबॉट क्या बला है और एआई क्या कर देगा और रोबोटिक्स क्या कर देगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर देगी। हम सब जानते हैं कि बड़ी गिनती में किसान, क्या फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, हलवाई की दुकानों पे काम करने वाले लोग, यहाँ के सेलमैन, बहुत लोग इमीडिएटली अपना रोजगार खोने वाले हैं। शायद ये कैमरामैन जो इसको रिकॉर्ड कर रहा है अपना रोजगार गंवा देगा, इनकी जगह एक रोबोट आ जाएगा जो स्ट्राइक भी नहीं करेगा, मुझसे झगड़ा भी नहीं करेगा और ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो ऐसे में आप इन आर्थिकता के नए आयामों को कैसे देखते हैं? उसके लिए क्या तैयारी है? और वो आ रहा है, इट इज कमिंग सूनर देन वी थिंक। नहीं, बिल्कुल, हमें लगता है कि ये रोजगार का सवाल देश में जैसे किसानों का सवाल था कि उनको एमएसपी मिलनी चाहिए, तो और आपने सही कहा कि वो लड़ाई दरअसल कॉरपोरेट टेक ओवर के खिलाफ था। तो आज देश की पूरी लड़ाई, हमें लगता है कि ये जो कॉरपोरेट एक तरीके से इकोनॉमी में हमको धकेल दिया गया और देश इसको महसूस कर रहा है कि इसका मतलब ही है महंगाई, बेरोजगारी, और महंगाई और बेरोजगारी से निकल करके हमें कोई इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए जिसमें मैक्सिमम रोजगार की गारंटी हो और लोगों के पास जीने लायक साधन हो, जीने लायक कम से कम आमदनी उनकी हो। तो ये मुद्दा बनेगा, बिल्कुल हमें लगता है कि, और ये मुद्दा जब बनेगा तो एजेंडा बदलेगा, देश का रास्ता बदलेगा। तो अजे तक तो मतलब हुकूमत सानू ये दस रही है कि देश बड़ा तरक्की की राह ते है, असी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसल दे विच अपनी पक्की कुर्सी लगानी है, तो ये BBC जिस तरह दी मर्जी डॉक्यूमेंट्रियां बनाता रहे, ये अंग्रेज़ की समझते हैं भी साढ़े ते राज करनगे, सानू इन्हां दी कोई परवाह नहीं। पर दिवाकर भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि अज दी डेमोक्रेसी ते बड़ी ये वाली ते बड़ी फ्रेजाइल ही नहीं, बड़ी जैसी कैसी भी है, टुटी भजी, ये भी बहुत खतरे दे विच है। तो जे ध्यान नहीं धरांगे तो इन्हां वड्डियां बहसां नाल नहीं जुड़ांगे तो फिर वी माइट बी स्लीप वॉकिंग इनटू ईवन डीपर ट्रबल। नींद विच बंदा जिहड़े तुरन लग जांदे ने, ऐसी जगह जा पहुंचते ने जिहड़े सुत्ते हुए लोग ने, जिथों वापस मुड़ना पॉसीबल नहीं हुंदा। अज लई इन्ना ही, धन्नवाद, ते रब रखा।